Hello my dear students, as we have completed our chapter getting to know plants, so today we are going to solve exercise of this particular chapter from your NCERT book. So let's start with the question number. Question number 1 is correct the following statements and rewrite them in your notebook. In 1A, first question is stem absorbs water and minerals from the soil. As we have discussed in functions of stem, you are very much aware that roots absorb water and minerals from the soil. So the correct answer will be roots absorb water and minerals from the soil. B. Leaves hold the plant upright. You know, leaves are responsible for photosynthesis and roots are responsible to carry water and minerals, and stem holds the plant upright. So the correct statement will be stem holds the plant upright. So moving towards next question, C. Roots conduct water to the leaves. You know, roots absorbs water and stem conducts water to the leaves. The correct answer will be stem conducts water to the leaves. Question number D. The number of petals and stamens in a flower is always equal. It is not correct. The correct statement will be the number of petals and stamens in a flower may not be always equal. It may be equal, it may not be equal. It is not always that it will be equal in number. Okay, so you have to write it is not always equal in number. Question number E. If the sepal of a flower are joined together, its petals are also joined together. It is not correct. The correct what we can say is if the sepals of a flower are joined together, its petals are separate. How we can say? You take an example of any flower. Suppose hibiscus you are taking. So in hibiscus you are saying that petals are separate and sepals are joined. Okay. Again, if you are taking another flower, suppose dhatura is there. Brinjal also you can see. So these are the example where you are seeing that petals are separate and sepals are joined. Now question number F. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals. It is not correct. The correct statement, if the petals of a flower are joined together, then the pistil may or may not be joined to the petal. It is not always correct that pistil will be joined together. Okay. So now we are moving towards question number 2. Here you have to draw a leaf, a taproot, a flower. Okay. It mentioned that that you have studied in table number 7.3. So in that way you have to write. So you can draw a leaf, a taproot and a flower. So this is the drawing portion. So I am not going to discuss with this. Yeah, I know that you will be able to do that. Question number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood
which has a long but weak stem. Write its name. In which category you will place it? So we have discussed about variety of plants. We have discussed about herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. So what is the what are the statement given here? Long stem. What is that? Long stem but weak. It is not strong. It is not talking about thickness. Stem is long but it is weak. So you know that in creepers and climbers we saw that stem was very long but it was very weak. It was able to climb, it was able to creep, but because of its weak stem. So you can take example of any cripple, any climber or any creeper. So it is up to you what example you are taking. So if you are taking example of creeper, you will place in creeper category. If you are taking example of climber, you will place it climber category. It is up to you. Okay, the question number 4, what is the function of a stem? You know, just now we saw that stem holds the plant upright. The first thing, because of stem, plant is able to stand upright. The water which is absorbed by the root is carried to the leaves by the stem, so it conducts water. Then the food which is synthesized by leaves is carried to various part of the plant with the help of stem. So it carries water, it carries food, it holds the plant upright. So these are the function performed by the stem. Some more function you can say, it bears fruit, flowers, stem, branches. So these are also the function of stem. Question number 5, which of the following leaves have reticulate venation? You know, the plants which are having taproot system or which are having dicot property, dicot seed, they will be having reticulate venation. And the plants which are having fibrous roots and monocot seeds, they will be having parallel venation. So let's see wheat. Wheat, you have seen that wheat is having what kind of venation? Wheat is having parallel venation. Wheat is having parallel venation. Next is tulsi. Tulsi, you have seen it may be in your kitchen garden near your house. So tulsi is having reticulate venation. You can check it again. Then another plant is given, maize, that is corn. Maize is again, you see the seed of maize, you will get only one cotyledon, that is it is monocot, and the venation you will find in maize will be parallel venation. Then if you see any grass, if it is in grass family, Gramineae family, then it will be having parallel venation. If you see coriander, if you break the seed of coriander, you will get two parts. So coriander will be having reticulate venation. Coriander means dhania. And China rose, you know, this hibiscus is having reticulate venation. Okay, now question number 6, if a plant has fibrous root, what type of venation do its leaves have? मैंने आपको अभी बताया बेटा कि जब भी और क्लास के समय डिस्कस करने के समय में भी आपको बताया कि अगर फाइब्रस रूट सिस्टम है तो जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा। अगर जब भी आप देखते हैं कि किसी भी पौधे में फाइब्रस रूट सिस्टम है तो वेनेशन जो होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा। जब किसी भी लीफ में
किसी भी लीफ में अगर आप पैरेलल वेनेशन पा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि जो रूट सिस्टम होगा वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। तो आपको अभी बताया कि जैसे ही रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रूट होगी वो टैप रूट सिस्टम होगी। टैप रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो एक रूट होगी वो डोमिनेंट होगी, बाकी जो होंगी सब्सिडरी रूट्स होंगी। ब्रांचिंग जैसी आपको ऐसा लगा कि उसे छोटी छोटी दूसरी जो हैं वो लीव्स निकली हुई हैं, सॉरी रूट्स निकली हुई हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब टैप रूट, पैरेलल वेनेशन मतलब फाइब्रस रूट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द impression of its leaf on a sheet of paper। आप बहुत बढ़िया से बता सकते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं? आपको जैसे ही लीफ दिखाई देती है, अगर रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उस पौधे में जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन अगर है तो टैप रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आप बोलेंगे यस वी कैन, आप बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आप इसे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नीचे से शुरू करिए। नीचे से जब सबसे पहले ग्रीन पार्ट को जब आप देखते हैं तो वहाँ आप बताते हैं कि सेपल है, उसके ऊपर जो है वो पेटल है। उसके बाद अगर अकेले सेपल है तो सेपल बोलेंगे, ग्रुप की बात करते हैं तो कैलिक्स बोलेंगे, एक पेटल को पेटल और ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला बोलते हैं। तो आपको सेपल मिल गया, पेटल मिल गया। उसके बाद जब आप और देखने अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। उसके अंदर और जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? पिस्टिल मिलता है। उसके कितने पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर जाते हैं तो आपको ओव्यूल्स मिलता है। ओके, तो ये सब हो गए पार्ट। तो आप फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कि सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, उसके अंदर जब आप और जाएंगे तो आपको एंथर और फिलामेंट के साथ स्टेमन मिलेगा, और उसके और अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्पेल या पिस्टिल, आप उसे बताएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आप बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है आप देखिए। ग्रासेस, आपको बहुत सारी ग्रास दिखाई देती हैं। नॉर्मली अगर आप किसी ग्रास की बात करें, जैसे दूब ग्रास की बात करें, साइनोडॉन बोलते हैं उसको, अगर उसकी बात करें तो आपको उसमें फूल नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर वो बहुत पुरानी हो जाए या किसी दूसरे वैरायटी को आप देखें तो उसमें आपको फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप नॉर्मली कहें तो कहेंगे कि इसमें फूल हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सारी ग्रास ऐसी हैं जिसमें कि फूल आपको दिखाई देता है, फ्लावर्स होते हैं। मेज़, मक्के में अगर देखें तो आपको क्या होता है, मैक्सिमम जो ग्रासेस हैं, मेज़ भी है, ये भी मोनोकॉट है, ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, अगर देखा जाए तो आपको ऊपरी तरीके से अगर बताएं तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो आपको नॉर्मली यही कहेंगे कि नहीं होता, तो होता है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है। वीट की बात करें, इसमें भी फ्लावर होता है, इसमें भी बहुत छोटा होता है। चिली की बात करें, इसमें आपको फ्लावर दिखाई देता है, वाइट कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं, इसमें भी होता है। टोमेटो में भी फ्लावर होता है। तुलसी में भी अगर आप देखें तो तुलसी में भी फ्लावर होता है। मैंगो में भी फ्लावर होता है। पीपल की बात करते हैं, पीपल की अगर बात करें तो पीपल में जो आपको बाहर से कोई भी फ्लावर नहीं दिखाई देता है। इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है पीपल और बनियन के लिए कि आपको बाहर फ्लावर दिखाई नहीं देता है। सीसम की अगर बात करें तो सीसम में भी आपको फ्लावर दिखाई नहीं देता है। मैंगो में आपको फ्लावर दिखाई देता है, ग्रुप में दिखाई देता है। जामुन में भी आपको ग्रुप में दिखाई देता है। गुआवा में भी जामुन में आपको फ्लावर दिखाई देता है, और गुआवा में भी आपको फ्लावर दिखाई देता है। पपाया की बात करें तो पपाया
में बड़े फ्लावर दिखाई देते हैं, बनाना में एक सिंगल फ्लावर दिखाई देता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, लेमन में भी आपको फ्लावर दिखाई देता है। शुगर केन की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुगर केन की अगर बात करें तो शुगर केन में क्या हुआ है कि नॉर्मली आप छोड़ देंगे शुगर केन को ज़्यादा दिन तक, तब आपको फ्लावर दिखाई देगा। कुछ एक साल के अंदर अगर आप चाहें कि शुगर केन में फ्लावर देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्लावर उसमें भी होता है। पोटैटो को भी नॉर्मली अगर आप छोड़ दें तो कुछ दिन बाद उसमें फ्लावर दिखेंगे, उसमें भी आपको फ्लावर दिखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस में फ्लावर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें आपको, आप कह सकते हैं कि, और कुछ लोअर प्लांट्स जो हैं उसमें आपको जो है फ्लावर दिखाई नहीं देंगे और होते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं, जो मेज़र आपको सामने सामने दिखाई देते हैं, उसमें आप छांट के लिख सकते हैं कि नहीं ठीक है इसमें है। और आप चाहें तो इस समय तो बाहर निकलना ठीक नहीं है। अगर आपके आसपास, मतलब घर के आसपास या किचन गार्डन में अगर आपको कुछ ग्रास दिखाई दे, और तो आप उसको देख के लिख सकते हैं किस में फ्लावर हैं और किस में नहीं। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपने मन से। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो आपको पता है कौन सा ऐसा पौधा है, किचन गार्डन किसको बोलते हैं? किचन गार्डन आपको, आपके पौधे में जो होता है वो लीव्स को हम किचन गार्डन बोलते हैं, सॉरी किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, सॉरी किचन फैक्ट्री या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। कौन होता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट? लीव्स होती है आपको। और किस प्रोसेस से बनाते हैं? प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि स्टेम भी जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और वो भी अपना फूड बनाते हैं। तो मेजर पार्ट जो होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीव्स होती हैं। किस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कभी कभी स्टेम भी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। प्रोसेस सेम है। ओके ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो ओवरी को हमने बताया कि सबसे बाहर जो है सेपल है, उसके बाद जो है पेटल है, उसके अंदर जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद जो ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है। तो ये आपको एकदम अंदर स्वेलन जो होता है, स्वेलन दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है, वो ओवरी होती है। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेम टू प्लांट्स, name two plants in which one has joint sepal and other has separate sepals। तो यहाँ पर आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर केवल आपसे दो पूछा गया है कि जिसमें जॉइंट सेपल हो और सेपरेट सेपल हो। जॉइंट सेपल में आप देखिए, मैंने बार बार हम लोग बात किए हैं हिबिस्कस की या चाइना रोज़ की, तो आपने देखा है कि उसमें जो सेपल्स हैं वो जो नीचे हैं आपको एकदम कप की तरह दिखाई देता है और सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। धतूरे के पौधे को देखे होंगे, उसके फ्लावर को भी, उसमें भी ग्रीन कलर का जो सेपल होता है वो उसके वाइट कलर का फ्लावर होता है ऊपर, उसमें भी जो सेपल्स होते हैं आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ब्रिंजल की बात करें तो उसमें भी आपको सेपल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप सेपरेट की बात करते हैं, सेपरेट किस में होता है? अगर आप रोज़ को ले लें, नॉर्मल रोज़ को जिसे आप गुलाब बोलते हैं, ये इसमें आपको जो होगा वो आपको सेपरेट मिलेगा। उसके बाद मस्टर्ड फ्लावर को ले लें तो सेपरेट मिलेगा। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अभी आसपास जाके और भी बहुत सारे हैं। लोटस को ले लें, लोटस हमारे यहाँ जल्दी नहीं मिलता है, और जैस्मिन को ले लें, तो आप चेक करके लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसके जो सेपल्स हैं वो सेपरेट हैं या ज्वाइंट हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद।